And we have a guest speaker from our church in Allahabad, Paramjit Singh Ministries Bar of Love Association. And this is Pastor Joel Lawrence. So you can join me on Facebook now as he will give a beautiful message. And do not forget, after this beautiful message, I will be praying very differently for the oil. So here people have brought the oil. यहाँ पे लोग oil लेके आए हैं. जो लोग मेरे साथ जुड़ते जाएंगे, ये मत सोचिएगा मैं वापस नहीं आऊंगा. मैसेज के बाद मैं वापस आऊंगा और ऑयल के लिए प्रे करूंगा. आप भी ऑयल अपने सामने रखिएगा और सब हम मिलके अग्रीमेंट में उसके लिए दुआ करेंगे वचन सुनने के बाद. तो I present Pastor Joel. Amen. Thank you so much, Pastor Pradeep, and the entire POL family. Yes. You can be seated, please. It is my privilege and honor to be here in Mumbai after 30 years. So I begin with a testimony. मैं एक गवाही से शुरुआत करता हूँ. 30 साल पहले मैं IIT पौड़ी में आया था और उस समय मेरा हुलिया और दुनिया दोनों अलग थी. मेरे बड़े बाल थे, मेरी फटी जीन्स थी, आजकल तो फैशन है, पहले फाड़ लेते थे और बाह फाड़ लेते थे, बड़े बड़े बाल थे, डोले शोले थे. And so we went a different work into a music group and etc. The rest, you know, things that are associated and attached with it. Booze and drugs and beer and everything. But now I'm here 30 years later, where the Lord has brought me in His time with a different purpose. In the name of Jesus, I have come to this church in the city of Mumbai to preach the living gospel of Jesus Christ. Hallelujah. आज से 30 वर्ष पहले मैं IIT पौड़ी मुंबई में आया था. तब मैं एक संगीत के ग्रुप में एक टीम मेंबर था और मेरा हुलिया अलग हुआ करता था. आज 30 वर्ष बाद परमेश्वर मुझे दोबारा यहाँ पर अपने समय में लेकर आए हैं. अपनी योजना के अनुसार आज मैं उनका जो जीवित वचन और सुसमाचार है वह आपको सुनाने के लिए यहाँ पर आ रहा हूँ. I thank the Lord and I thank Pastor Paramjit and Pastor Moni for giving me this opportunity to share the word of Jesus Christ. और मैं पास्टर परमजीत और पास्टर मोनी दोनों का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आज आपके सामने परमेश्वर के वचन को सुना सकूं और आपके कुछ बांट सकूं. Before I bring the word of God, I want to bring a testimony before you. और परमेश्वर का वचन आपसे बात करने से पहले मैं एक गवाही आपके साथ बताना चाहूंगा. In 1990, I was saved. मेरा जो उद्धार है वह 1990 में हुआ. In 1992, I got a job as a teacher, which initially I hated. और 1992 में मुझे नौकरी मिली जो मुझे पहले शुरुआत में पसंद नहीं थी. In 95, I felt very sick with nervous problem and depression. और 1995 में मेरी बहुत तबीयत खराब हुई और मुझे नर्व का रोग हो गया और मैं अवसाद में चला गया. 98, I got married. और 98 में मेरी शादी हुई. 2003, I started my own ministry after God's call on my life. और 2003 में मेरी खुद की सेविकाई शुरू हुई जब परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में आई. For 4 years, I did my ministry alone after getting connected with other pastors. और 4 वर्ष तक मैंने अपनी सेविकाई को अकेले ही चलाया. दूसरे पासवानों के साथ मेरा लगाव था और जो उनके साथ मैं जुड़ा हुआ था. And 4 years I was praying, Lord, connect me with a ministry where you would want me to be. और उन 4 वर्षों तक मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे उस सेविकाई और कलीसिया से जोड़िए जहां पर आप मुझे जोड़ना चाहते हैं. Now there were many churches and there are many churches in UP and in the city of Allahabad. और उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद के अंदर बहुत सारी कलीसियाएं हैं. But I was not comfortable to get connected with any ministry or church. लेकिन उनमें से किसी भी कलीसिया के साथ मुझे एक अच्छा नहीं लग रहा था जुड़ने में. I wanted God's clear guidance. और मुझे परमेश्वर का एकदम साफ निर्देश चाहिए था. In 2007 January, Pastor Paramjit came to the city of Allahabad. 2007 में पास्टर परमजीत इलाहाबाद शहर में आए. In January, though I did not know him, my name was referred to
as his translator. अब मैं उनको बहुत ज्यादा नहीं भी जानता था, लेकिन तब मैं उनके लिए अनुवाद करने का कार्य करता था। And he came again to the city of Allahabad and to our Christian colony, and again I translated his message. और फिर एक बार फिर से वो हमारी कॉलोनी में आए ईसाइयों के बीच में, और वहां पर फिर से मैंने जो उनके समाचार और संदेश होते थे उनका अनुवाद किया। So while he was having his breakfast before leaving the city of Allahabad, और जब इलाहाबाद शहर को छोड़ने से पहले जब वो अपना नाश्ता कर रहे थे, I took his banners which he had forgotten just to give him in the hotel. तब मैं होटल में चला गया, क्योंकि ये जो अपने साथ पैम्पलेट और बैनर्स लाए थे वो भूल गए थे, तो मैं उनको लौटाना चाहता था। Now while he was having breakfast, I had my apprehensions and fears which I shared with him in ministry. और जैसे वो अपना नाश्ता कर रहे थे, तो मेरे अंदर जो भी भय था अपनी सेविकाई को लेकर, वह मैंने उनसे बताया और बात की। I had come across two people, one dominated, the other wanted to take over my ministry. और मेरे जीवन में ऐसे दो लोग थे जिनसे मेरा सामना हुआ था, जिनका एक आप कह सकते हैं उनके पास ताकत थी, जो मेरी कलीसिया और मेरी सेविकाई पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। So I didn't want to think twice but 10 times before getting connected to anyone else. तो इसलिए मैं 10 बार सोचता था किसी और से जुड़ने से पहले या बात करने से पहले। So while we were pastor was having breakfast, Pastor Paramjeet, तो जैसे पास्टर नाश्ता कर रहे थे उस वक्त, and I shared my fears with him, जब मैंने उनको अपना डर बताया, my past experience with him, और जो मेरा अनुभव था वो मैंने उनसे बताया, he spoke to me a sentence which I don't know whether he remembers or not. तो उन्होंने मुझसे एक वाक्य कहा, मुझको नहीं पता उनको आज भी वो वाक्य याद है या नहीं। आओ मिल के काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। It's not going apart, it's not going down. We are co-workers. The Bible says we are co-workers in the ministry in the kingdom of God. तो हम में से कोई ऊंचा या नीचा बनकर कार्य नहीं कर रहा है, हम सहभागी हैं परमेश्वर के राज्य में और हम मिलकर उनका राज्य। And that went into my heart very smoothly, and I was able to accept it. वह बहुत ही आसानी से मेरे हृदय में चला गया और मैं उसको स्वीकार भी कर सका। So 3 days he prayed for me over there. वहाँ पर 3 दिनों तक उन्होंने मेरे ऊपर और मेरे लिए प्रार्थना भी की। He prayed for me over there, and 3 days later I assured that yes, I am in. 3 दिनों तक उन्होंने मेरे को आने से पहले प्रार्थना की और फिर मैंने यह बोला कि हाँ ठीक है, मुझे यह मंजूर है और मैं यह करना चाहूँगा। Hallelujah. So that's how we got connected. And to tell you, to give you a proof, Joshua, come quickly. Open the bag. Give me my grey diary, the yellow diary and the Bible. This testimony, what I'm sharing with you, I wrote 11 years ago. My association and connection with Power of Love Church. I must see this. जो मैं आज आपको गवाही बताने जा रहा हूँ वो 11 वर्ष पूर्व मैंने लिखी थी कि कैसे मैं इस पावर ऑफ लव से जुड़ा। Sister, can you read the date? 10th May 2008. And what is the topic of this? My testimony and association with POL. This is what I wrote 11 years ago and how I got connected, and this is what I'm sharing with you. Hallelujah. This. And before I bring you the word, I just still want to share something. That in between there have been moments where pastor has not interfered at all in my ministry, about which I was afraid. और मैं आपको कोई संदेश बताऊं परमेश्वर का, उससे पहले मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि इतने वर्षों में परमेश्वर ने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया मेरी किसी भी कार्य में जो मैं कलीसिया में कर। पास्टर ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया मेरी कार्यशैली में। And though and whenever we have been meeting from time to time, और जब भी हम समय समय पर मिला करते हैं, he has been teaching us. वो हमें सिखाते रहते हैं। Now this is another example of the teaching we got in Bhavali in 2008. You can see this? This is another teaching which he gave us in Bhavali. And in this teaching, and the page after this, he told us one thing. This is my old diary, so it's worn out. Always keep it. Another page is here. It says,
shaking. Please see this. Shaking. This was taught to us by Pastor. This drawing is whose? Yours, your handwriting, Pastor. Please. See, Oh, This is the handwriting of Pastor Paramjit. 11 years ago. 11 years ago, while we were having our breakfast, he was teaching us. And as a young pastor, I was very discouraged. Hallelujah. Pruning, Pruning. supernatural work, Allahabad, Saranpur, graph. So, as a young pastor, I was discouraged in the church because many were coming and many were leaving. और नया और युवा पासवान होने के नाते मैं काफी हतोत्साहित भी हो जाता था क्योंकि कलीसिया में कई लोग आते थे और कई लोग चले भी जाते थे. He told us one thing from John 15. और यूहन्ना 15 से तब उन्होंने मुझे एक बात सिखाई. He told us one principle. उन्होंने मुझे एक सिद्धांत सिखाया. The pruning is not about an individual. छटाई और कटाई जो होती है वह एक व्यक्ति के लिए या उसके बारे में नहीं होती. It's about the church also. वह कलीसिया के बारे में भी होती है. The Lord will shake the church, which is like a tree. परमेश्वर कलीसिया को भी पेड़ की तरह कई बार हिलाता है. And those who are dry will fall. जो सूखे हैं वह झड़ जाएंगे. Those who are green will remain. जो हरे भरे हैं वो जमे रहेंगे. That is what is abiding. You abide in me and I abide in you, and you shall bear much fruit. और यह वचन में भी है, बाइबल में लिखा हुआ कि अगर तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो तुम फलोगे फूलोगे और हमेशा हरे भरे रहोगे. Now that is my testimony of power of the church, and he has been. Pastor Paramjit has been an elder brother to me, like an elder brother to me. I was trying to come here since the past 3-4 years, but God has His own timing. So I was able to make with my son. We have holidays. He's just passed his class 12. He's appeared for his BSc entrance. And here we are, bringing the good news of Jesus Christ. और मैं पिछले 3-4 वर्षों से कोशिश कर रहा था कि मैं यहाँ आ सकूं, लेकिन परमेश्वर का अपना वक्त होता है. अभी मेरे पुत्र ने 12वीं की परीक्षा पास की है और उनके एग्जाम चल देंगे वो आगे, तो हमारी छुट्टियां हैं. परमेश्वर के अपने समय में मैं यहाँ पर हूँ और उनका सुसमाचार मैं आपसे बांटूंगा. Now I am a teacher teaching senior boys in a Christian school. मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं बड़े बच्चों को सिखाता हूँ एक ईसाई स्कूल में. And it's been 27 years since I've been teaching. और मैं पिछले 7 वर्षों से शिक्षा का 27 सालों से मैं शिक्षा का कार्य कर रहा हूँ. We have a church, a small church. हमारा एक छोटा सा कलीसिया भी है. But we are going to convert it into a big church. पर अब हम इसे एक बड़ी कलीसिया में बदल देंगे. It is the Lord's church. और ये परमेश्वर का कलीसिया होगा. And like you have testimonies, like you have the work of the Holy Spirit, like you have a wonderful worship team, like you have supporters, like you are one praying for the pastor, the same is being followed in Allahabad. जैसे आप एक हैं, आपके पास एक स्तुति आराधना करने के लिए लोग हैं, जैसे आप एक मन से एक दूसरे के प्रार्थना करते हैं, पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, वैसे ही अब परमेश्वर का कार्य उस कलीसिया में भी होगा. I come from a school where Amitabh Bachchan has studied in class 7th. मैं उस स्कूल से हूँ जहाँ पर अमिताभ बच्चन जी ने अपनी 7वीं की कक्षा तक पढ़ाई की थी. And I studied there and I'm teaching there. मैंने वहीं पर पढ़ाई की और अब मैं वहीं पर शिक्षण का कार्य भी कर रहा हूँ. And we come from a city, though a small city, we have given India 7 prime ministers. और मैं उस छोटे से शहर से हूँ जहाँ पर भारत को 7 प्रधानमंत्री जिस शहर ने दिए हैं. So praise God, all glory to Jesus. Can we have a clap offering for the Lord? स्क्रिप्चर जो बोलेगा आप ठीक है.
Hallelujah. When you are speaking about the word of God, or reading about the word of God, or speaking or believing the word of God, you are touching Jesus Christ. Hallelujah. Either the Bible will keep you away from sin, or sin will keep you away from the Bible. As one of the girls was standing here and saying, the Bible is the living word of God which speaks to you, which speaks to me. And it has the power to convict and heal and direct and guide. So we are very privileged and blessed to have the living word of God come to us. And so we praise God for that. And we just say a quick prayer and we get into the word of God. God our Father, we thank you, Lord, it is your living word. And man cannot understand it by his own intellect unless you unlock and open the mind of your people. And so, Lord, I pray, Holy Spirit, sir, as you are here, help us, Lord, to preach the gospel, understand the gospel, to receive it in our hearts and to practice it in your name for the glory of the Son, Jesus. Help us, O Lord. We bless your name and we give you glory. Let the word of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my God, my Redeemer. In Jesus' name. मेरे मुंह के शब्द, मेरे मन का ध्यान प्रभु तुझे पसंद आए. हे हमारे चट्टान और फिदिया देने वाले. आमीन. Hallelujah. No, you carry on as you want to. आज का जो गाना गाया गया है उसका एक मकसद है, तू मेरा बल, मेरी नजात, मेरी आराधना है. क्योंकि आज का टॉपिक ही है The God who strengthens the weak. परमेश्वर जो कमजोरों को बल देता है. जब गिडियन के पास, गिदोन के पास न्यायों 6 में, जजेस 6 में एंजल गया, तो उसके 6 बाब की 13वीं आयत में गिडियन बोलता है, Oh, I am the weakest in the clan. I am the least in my family. मैं तो अपने कुल में सबसे कमजोर हूँ और अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ. And what did the angel say? Oh mighty man of Valor, oh strong man of Valor. दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, मूसा को परमेश्वर चुनते हैं और इसके बारे में हमको पता चलता है निर्गमन उसकी 3 बाब में हम देखते हैं, परमेश्वर मूसा को बुलाते हैं कि तुम इजराइलियों को मिस्रियों के बीच से निकाल के लेके आओगे. तो पहला जो बहाना मूसा बनाते हैं, he says, who am I who should go to Pharaoh and deliver the people of Israel? मैं कौन हूं जो फिरौन के हाथ से इजराइलियों को छुड़ाऊंगा. उसके बाद वो दूसरा बहाना बोलते हैं और वो बोलते हैं, even if I go, what will I say? मैं क्या बोलूंगा. और तीसरा बहाना वो बोलते हैं, even if I tell them that I am has sent you, आपने मुझे भेजा है, तो वो विश्वास नहीं करेंगे. और फिर वो बोलते हैं, मैं तो बोलने में अच्छा नहीं हूं. I am not eloquent. I am not good in speaking. और फाइनली वो बोलते हैं, Lord, please send someone else. और परमेश्वर फिर उसके लिए इंतजाम करते हैं, उसके भाई मूसा के लिए उसको एक लाठी देते हैं और कहते हैं, इसी शक्ति में जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं. तीसरा उदाहरण हम देखते हैं पतरस का, जिसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया. ईश्वर ना करे. पास्टर परमजीत, आई नो हिम फॉर मेनी इयर्स. अगर वो, मैं मुंबई में नया हूं, फिर भी अगर वो कहीं पे उनकी गाड़ी खराब हो जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए और मैं उनका इनकार कर दूं, who is he? I don't know. Who's Pastor Paramji? No, I promise, I swear, I don't know Pastor Paramji. And that is what Peter did. पतरस ने भी वही किया. He invoked a curse on him. वो छोटी सी लड़की कहने लगी, तेरी भाषा ये बताती तू यीशु के साथ रहा है. The way you are speaking tells that you were with Jesus. And he was invoking because I don't know. His sin was as blatantly grave as the sin of Judas Iscariot. उसका पाप उतना ही संगीन था जितना यहूदा स्कृति का था, क्योंकि उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया. Peter was impulsive. पहले करता था फिर सोचता था, तलवार निकाल के कान काटता. हम देखते हैं लूका 5 में जब बहुत मछली पकड़ी जाती है
तो पतरस को एक रेवलेशन होता है, he is not an ordinary man. I have been fishing all night and I'm a professional, लेकिन मैं मछली नहीं पकड़ पाया हूं। और इसके कहने पे मछलियां नाव में भर गई, जाल फटने लगे, वो मछलियां को भूल गया, यीशु मसीह के पैर पर गिर गया, कहने लगे मुझ पापी पास से तू दूर हो जा, depart from me for I am a sinful man. Jesus said, yes Peter, you're a sinner. No, he didn't say that. He said, आज से तुम मनुष्यों को पकड़ने वाला हो। हालेलुया। और जब यीशु मसीह जिंदा हो गए, हालेलुया, और जब यीशु मसीह जिंदा हुए तो उन्हें पतरस से नहीं बोला, ओह पीटर, you are the same Peter who was about to die with me. तू तो मेरे साथ मरने जीने की कसमें खा रहा था और तूने मेरा इनकार कर दिया। Come on, you are not worthy of me. तो मेरे लायक नहीं है, बेकार है, किनारे हो जाओ। But if you read John chapter 21, Jesus told him 3 times, feed my sheep, feed my lamb, feed my flock. मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चला और मेरी कलीसिया की देखरेख कर। चौथा व्यक्ति हमें पुराने नियम में मिलता है जो कि मेजर प्रॉफिट कहते हैं जिसको, वो है यिर्मयाह। और यिर्मयाह कहता है उसके पहले अध्याय की 5वीं आयत में, I am too young and I do not know how to speak. मैं तो अभी बच्चा हूं, मैं क्या बोलूंगा जाके लोगों से। एक जन अपने आप को बच्चा समझ रहा है, एक अपने को मुंह का भलता समझ रहा है, कह रहा मैं कौन हूं। गिदियन जो है वो छिप रहा है, वो डरपोक है, वो कह रहा मैं तो कमजोर हूं, मैं तो अपने परिवार में सबसे छोटा हूं। और यही नहीं, अगर आप यशायाह को देखेंगे उसके 6ठे अध्याय में, वो भी एक बड़ा भविष्यवक्ता है। और जब परमेश्वर का प्रकाश उसके ऊपर आया तो कहने लगा, आई एम अ मैन ऑफ अनक्लीन लिप्स, मैं एक अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। ये हमारे भविष्यवक्ताओं की सोच रही, ऐसे लोगों की सोच रही जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। और ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जब लोगों ने कुछ नेगेटिव बोला है, चाहे वो पतरस हो या चाहे एजकेल हो, चाहे वो यिर्मयाह हो, चाहे वो गिडियन हो, चाहे वो मोसेस हो, परमेश्वर ने इन सब के बावजूद उनको उल्टा बोला। गिडियन कह रहा है मैं कमजोर हूं, एंजल कह रहा है यू स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ वेगा। यिर्मयाह कह रहा है मैं तो मुंह का भद्दा हूं, मैं तो छोटा हूं। और परमेश्वर कह रहा है इससे पहले कि कोख में तू आया मैं तो तुझे जानता था, इससे पहले कि तू पैदा हो मैंने तेरा अभिषेक कर दिया था और मैंने तुझे चुन लिया था कि तू भविष्यवक्ता बने। ये हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में फर्क है। और आज मैं आपको परमेश्वर के वचन के आईने में वो दिखाना चाहता हूं जो परमेश्वर आपको जैसे देखता है। We think too small ourselves. We think that we are sinners. We think that we are people who are limited. We think that we are people with shortcomings, which we are. हमारे अंदर कमी होती है, हमारे अंदर गलती होती है, हम टूटते हैं, हम बिखरते हैं, हम अपने से किए वादे पूरे नहीं कर पाते हैं, हम बिखर जाते हैं, लोग हमें दगा दे देते हैं, अंदर से प्रॉब्लम आ जाती है, फैमिली में प्रॉब्लम आ जाती है, बाहर से प्रॉब्लम आ जाती है। और ये सब के मध्य में हम इतना पिस जाते हैं, हम दुआ नहीं कर पाते, हम चर्च नहीं जा पाते और हम अकेले संघर्ष करते रहते हैं। In other words, we become weak. हम कमजोर पड़ जाते हैं और तब हमको झूठ का पिता एक बात बोलता है, तुम परमेश्वर की सेवा करोगे, तुम प्रभु से दुआ करोगे, तुम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हो। 3 दिन पहले देखो क्या पाप किया था, 4 दिन पहले दिन भर उपवास रखा था और मां से बदतमीजी कर दी थी, उससे पहले 1 साल पहले तुमने किस लड़की को धोखा दिया था। और हमारे सामने दोष लगाने वाला, he is the accuser of the brethren, हमारी गलतियों को, हमारे पापों को, हमारे पास्ट को, हमारे पिछली जिंदगियों को, हमारी सब कमियों को हमारे सामने लाके खड़ा कर देता है। और हम इसी दृष्टिकोण में रह जाते हैं that we are too small, we are too weak, we are too limited, we are fallen, we are shattered, we are broken, we cannot do much. तो या तो हम सेल्फ पिटी में रह जाते हैं
और ये हम सोचते हैं भैया बहुत कोशिश करके देख ली, हम उतने धर्मी नहीं बन सकते, हमसे उतनी प्रार्थना नहीं हो सकती, ये अपना काम नहीं है, कोई दूसरा ही कर सकता है. In other words, from time to time we become weak. मैंने वीकनेस की दो मीनिंग्स निकाली है, ठीक है. मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, आप यहां से उसको हिंदी में पढ़िए, ठीक है. ये लिखी हुई है. तो पहली मीनिंग है, इट मीन्स फ्रेल, फीबल, डेलिकेट, हेल्पलेस, पावरलेस. पहले जो मैंने एक आशय निकाला है कि कमजोर का क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कमजोर, नाजुक, मजबूर, बेबस या शक्तिहीन. The second meaning means defect, shortcoming, blemish, deficiency, fault or imperfection. कमी, दाग, गलती, अधूरापन. Now out of these two, we fall somewhere. It fits or suits us somewhere. और इन सब सारी परिभाषाओं में कहीं न कहीं हम आते हैं, कहीं न कहीं हम इसमें पढ़ते हैं. So we become feeble, or we become limited, or we have some shortcoming, or we have some defect. There are 5 kinds of weaknesses. तो हम कहीं न कहीं कमजोर या अधूरे रहते हैं, हमें गलतियां होती हैं. मुख्यतः 5 तरह की कमजोरियां होती हैं. Physical weakness, एक आपकी शारीरिक कमजोरी, which is caused by sickness. जो कि बीमारियों की वजह से मुख्यतः होती है. In Mark chapter 5 verse 25 to 34, मरकुस की पुस्तक में 25 से 34वीं आयत तक लिखा है. we see a woman with a flow of blood for 12 years. हमने एक स्त्री को देखा कि 12 वर्षों से उसे लहू बहता था. She was physically weak. वह शारीरिक रूप से कमजोर थी She was deceived by many doctors. Read it carefully. और बहुत ही सारे चिकित्सकों ने उसे धोखा भी दिया था. बहुत वैद्यों से दुख उठाकर सारा माल व्यय करने पर भी, खर्चा करने पर भी उसको कोई लाभ ना हुआ था, परंतु और भी बदतर हो गई थी. She was physically weak and financially weak. जो दूसरे प्रकार की वीकनेस हम देखते हैं, that is spiritual weakness. दूसरी कमजोरी होती है आत्मिक कमजोरी. A man came to Jesus whose son was demonized and the disciples could not cast him out. कोई ऐसा मनुष्य भी हो सकता है जो परमेश्वर के नाम में संदेश दे, लेकिन किसी भी बुरी आत्मा को वह निकाल नहीं पाएगा या उससे कोई कार्य नहीं. एक पिता यीशु मसीह के पास आया, चेलों के पास आया, उसके बेटे को मिर्गी की दुष्ट आत्मा थी, यीशु चेले नहीं निकाल पाए. वो रुका रहा. जब यीशु मसीह आए तो उसने बोला कि मेरे बेटे के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दीजिए. यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ. तो वो घुटनों पे हो गया, कहने लगा, लॉर्ड आई वांट टू बिलीव, हेल्प माय unbelief. I want to believe, but unbelief is standing right in front of me. So where can I get that faith? You help me. तो वह घुटनों पर आ गया. उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं तो विश्वास करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अविश्वास पे मेरी मदद कर. वह मेरे सामने आकर खड़ा हो रहा है, मैं कैसे विश्वास करूँ? There are times we want to believe, but we don't have faith. कई बार ऐसा समय होता है जब आप विश्वास तो करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर विश्वास होता नहीं है. But one of the good news is, लेकिन अच्छी बात यह है one of the gifts of the Holy Spirit is faith. कि परमेश्वर की उनकी पवित्र आत्मा का एक उपहार है विश्वास. Sometimes a physical weakness is caused by a spiritual weakness. कई बार आत्मिक कमजोरी की वजह से भी शारीरिक कमजोरी हो जाती है. There was a boy in Mark 9:25 who was dumb and deaf. मरकुस 19:25 में एक बालक था जो सुन नहीं सकता था और बोल नहीं सकता था. The reason was he was demonized. उसका कारण यह था कि उस पर दुष्ट आत्मा थी. The spiritual problem led to a physical problem. तो वह आत्मिक समस्या जो थी वह शारीरिक समस्या बन गई. When Jesus cast out the dumb and deaf spirit, the boy spoke. तो जब उस दुष्ट आत्मा को, जो नहीं बोलने और सुनने वाली आत्मा को यीशु मसीह ने निकाल दिया, तो वह ठीक हो गया और बोलने लगा. There is another weakness known as weakness of morality. एक तीसरी जो आपकी कमी या कमजोरी होती है वह नैतिकता की कमजोरी होती है. Jesus in John chapter 4 or 5 goes to a well and meets a very beautiful lady
यूहन्ना की किताब में चौथे या पांचवें अध्याय में यीशु एक कुएं के पास गए और एक बहुत ही सुंदर स्त्री से मिले। Now in small cities, if you have this kind of women, the whole city and the colony will talk about. और अगर बहुत छोटे शहर में ऐसी कोई सुंदर स्त्री हो तो पूरा शहर ही उसके बारे में बात करता नजर आएगा। She used to keep lot of napkins. वो बहुत सारे अपने पास रुमाल रखा करती थी। 5 husbands she's already had. उसके 5 पति पहले से ही थे। 1 husband, it's like having a meal, not satisfied. Go to another one. एक पति को वैसे समझती थी कि जैसे आपने खाना खा लिया और आपका पेट नहीं भरा, आपको अच्छा नहीं लगा तो दूसरी चीज के पास आप जाएंगे। She went to another one, not satisfied, went to the third one. दूसरे के पास भी गई, वहां पर भी उसे तसल्ली नहीं हुई तो फिर वो तीसरे के पास गई। She did it with 5. तो 5 लोगों के साथ उसने ऐसा किया। And Jesus said, the 6th one whom you're staying with is also not your husband. तो फिर यीशु ने कहा कि जो 6वां पुरुष जिसके साथ तुम रहोगी वह भी तुम्हारा पति नहीं है। She was a characterless woman. और वह एक चरित्रहीन स्त्री थी। If Jesus could pick up a characterless woman with lot of sin and full of sin, He can pick you up and me and use us for His glory. Can you clap? अगर परमेश्वर ऐसी चरित्रहीन स्त्री को उठा सकते हैं तो वह आपको और मुझे भी उठा सकते हैं और अपनी महिमा में वह कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। There is a boy who was rich. ताली बजाइए। There was a boy who was rich and strong in finances. एक लड़का था जो कि बहुत अमीर था और उसके पैसों की बहुत भरमार थी उसके पास। But his strength, understand this principle, his strength was his weakness because he did not submit it to Jesus. पर उसकी जो ताकत थी वह उसकी कमजोरी बन गई थी क्योंकि उसने उसको प्रभु यीशु को अर्पण नहीं किया था। He wanted to follow Jesus and he said, I want to have eternal life. He wanted to follow Jesus and he said, I want to have eternal life. वह यीशु को उसके पीछे जाना चाहता था और कहता था कि मुझे अनंत काल का जीवन चाहिए। Jesus said, okay, you are doing fine, you follow the commandments. तो यीशु ने कहा कि ठीक है, तुम ठीक कर रहे हो, मेरी आज्ञाओं को मानो। And he did. और उसने ऐसा किया। He said, there is one shortcoming in you. यीशु ने कहा कि एक कमी तुम्हारे अंदर है। Today's message is for people, I don't know about you, but about myself. Those who are unrighteous, those who fall, those who fail, those who commit sin, those who cannot keep promises to themselves, those who are sometimes lead a prayerless life, those who sometimes are not able to meet the standards of God, and those who are struggling with their spiritual life. आज का जो मेरा संदेश है वह मुझे आपके बारे में नहीं पता, मेरे बारे में जो लोग कहीं ना कहीं गिर गए हैं, उनके अंदर कमियां हैं, वो परमेश्वर की सारी आज्ञाएं नहीं मान पाते, अपनी भी कहीं ना कहीं वह पाप में है, अपने से किया वादा वह नहीं निभा पाते और कहीं ना कहीं वह जूझ रहे हैं अपने जीवन से और वह खुश नहीं है। Before I get back to the message, the Bible says the righteous will fall 7 times. मैं अपने संदेश पर वापस आऊं उससे पहले मैं बाइबल में लिखा एक वचन बोलना चाहूंगा कि बाइबल में कहा गया है कि जो धर्मी है वह 7 बार गिरेगा। 7 is a number of perfection. और जो 7 है वह उत्तम होने का एक अंक है। If I consider myself righteous, I will fail and fall beautifully. अगर मैं अपने आप को बहुत धर्मी मान लूं तो मैं बहुत ही खूबसूरती से गिरूंगा और फिर निष्फल हो जाऊंगा। Besides Jesus, we are not righteous. यीशु के बिना हम धर्मी हैं ही नहीं। First, we are righteous by the blood of Jesus. सबसे पहले हम उसके लहू द्वारा धर्मी हैं। Then we become righteous by doing righteous deeds. उसके बाद हम अच्छे कार्य करके धर्मी बन जाते हैं। So we come back to the point. तो हम अपने इस संदेश पर वापस आते हैं। Jesus said, "You sell everything and follow me." To that young man, you sell everything and follow me. तो यीशु ने कहा कि तुम सारी अपनी चीजें वस्तुएं बेच दो और मेरे पीछे आ जाओ। And you will have a reward in heaven. और तुम्हें स्वर्ग में एक उपहार दिया जाएगा। You know what happened? वाट लग गई। तो क्या हुआ? मैं बोल दिया।
I got this word when I was preparing the message, believe me. Part language. Part language. It's a very Bombay word. The Bible says his countenance fell. चेहरा उतर गया. उसका चेहरा उतर गया उस In other words, what language? And he did not follow Jesus, could not follow Jesus. और वह यीशु के पीछे नहीं चल सका. Now I will also talk to you about another part of the message quickly, but I also want to share with you an emotional weakness. मैं आपको दूसरा भाग भी संदेश का बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक जो आपकी भावनात्मक कमजोरी होती है उसके बारे में बात करना चाहूंगा. दिल लगा पर इस गधी से तो परी क्या चीज है. क्या फिर से दोबारा मुकर्रर? दिल लगा गधी से तो परी क्या क्या चीज चीज है. है? I'm so emotionally so moved that I'm in love with her. शुक्र है And अपना though I have a very beautiful one as a proposal, but I'm so blind. I'm so blind that I will go after that one. It can be the other way around. It can be the other way around. Gadhe- Boys and girls, gadhe se girls lगा and दो. boys. It can be the other way around. यहाँ की बड़ी सेंसिटिव है औरतें. So I was talking about men. And then women. I understand. I know. We both understand. I have to go back to Lama. And this is on air. Easy. So, Samson and Delilah. Samson was strong because his secret was his long hair. And it was not about the hair, it was about the vow his mother had made. And because of that the razor will not touch his head. And because of that vow, he had long hair, and that was the secret of his strength. सैमसन जो थे वो ताकतवर थे क्योंकि उनके बाल बहुत लंबे थे और उनकी माँ की एक प्रतिज्ञा के कारण कि वो कभी भी कैंची या कुछ चलने नहीं देंगी, उसकी वजह से उनके लंबे बाल थे और वो उनकी ताकत थी. But ultimately, What? Delilah came into his life. Delilah. पर अंत में डिलाइला उनके जीवन में आई And she took the secret out of his heart. और उसके दिल से उसने वो रहस्य जान लिया, उसके बाहर निकाल लिया. We need to be careful. Charm is deceitful and beauty is vain, but the woman who fears the Lord is to be praised. Amen. We have a lot of beautiful women, both in body and in spirit and in character. God bless you. They will all love you now. So I'm talking about the last point of weakness, then we are coming to another point. Picture abhi baki hai. Okay? External weakness or situational weakness. बाहरी या फिर बाहर रूप से होने वाली कमजोरी. Sometimes you may not be weak in yourself. आप अपने में कमजोर नहीं हो सकते हैं, नहीं होते कई बार, परंतु परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाती है कि आप कमजोर पड़ जाते हैं. For example, you have 10 lakhs with you and suddenly you need 30 lakhs. So you become financially weak, not because you don't have the money, but because an external situation has come up against which you think that you're weak. कई बार परिस्थिति वश आप कमजोर होते हैं. जैसे अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं लेकिन आपको अचानक से आवश्यकता पड़ गई 30 लाख रुपयों की, तो आपकी कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन आपकी परिस्थिति ऐसी आई कि आपके पास वो पैसा नहीं है और इसलिए आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं. Now I'll give you 3 quick examples. In 2 Chronicles chapter 20, दूसरे इतिहास के 20 अध्याय में there was a king named Jehoshaphat. यहोशापात एक राजा थे. He heard that 3 armies have started. They will not start, they have already started against him. उसने सुना कि 3 जो है वो राज्यों की जो सेनाएं हैं उसके ऊपर आक्रमण करने आ रही हैं. And so he went to the Lord's temple तो वह परमेश्वर के मंदिर में गया and he said a prayer. और उसने एक प्रार्थना की. Lord, we do not know what to do. परमेश्वर हम नहीं जानते कि हमको क्या करना चाहिए. We are powerless against this great army. हम इन बड़ी सेनाओं के खिलाफ हमारी कोई ताकत नहीं है. Have you ever felt powerless? Yes. Weak? Yes.
against any sickness or disease or external attack of the enemy? Yes. Since we are powerless, he says we do not know what to do. That means mentally we have failed, our strategy has failed. But our eyes are fixed on you. Hallelujah. Our eyes are fixed on you because our help comes from the Lord who made heaven and earth. Psalm 21. यहोशापात ने कहा कि हमारा दिमाग अब कार्य नहीं कर रहा कि इन सेनाओं के खिलाफ हम क्या करें, क्योंकि हमारी सारी नीतियां असफल हो गई है, लेकिन हमारी आंखें आपकी ओर लगी हैं और हमारी जो मदद है वो परमेश्वर की ओर से आती है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया है। God intervened. Hallelujah. God intervened and they won the battle. परमेश्वर का हाथ उन पर आया, वह बीच में आया इस परिस्थिति में और वह युद्ध जीत गया यहोशापात। Without fighting. बिना लड़े ही वह जीत गया। Are you understanding what I'm telling you? तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? When we become weak, the Lord fights our battle. Hallelujah. जब हम कमजोर होते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर से युद्ध लड़ता है। We don't need to get into the boxing ring. Stay away. The enemy is strong. हमको हमेशा बॉक्सिंग रिंग के अंदर जाकर लड़ने की जरूरत नहीं है, दूर रहिए। कई बार आपका शत्रु ताकतवर है। Jesus said, I will get into the boxing ring. यीशु ने कहा है कि मैं बॉक्सिंग रिंग के अंदर जाऊंगा और मैं तुम्हारे शत्रु से लड़ूंगा। Yes, that is what he did on the cross. That is what he did on the cross. और यही तो उसने किया जो क्रूस पर उसने किया। We together as humanity could not have found a way of salvation. हम पूरी मानवता मिलकर भी, सारे मनुष्य मिलकर भी उद्धार का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाए। In fact, we did not know, according to Isaiah 53, that we were lost. और यशाया 53 की माने तो हम ये जानते भी नहीं थे कि हम खोए हुए हैं। It says, we like the lost sheep have gone astray. और वो कहता है कि जो गुई हुई भीड़ें थी वो बहुत छितर बितर हो गई थी और इधर उधर चली गई। Joshua, come. So it was like this. He's a sinner. He cannot fight. He needs salvation. He has to pay the price for sin. The curse has come upon him because of the first Adam. I, being the Son of God, I do something like this. Get aside. I will take the punishment. I will die on the cross. I will face the devil. You get on one side. ऐसे समझिए, यह पुत्र है, इसने, यह पापी है, यह अधर्मी है, इसने पाप किए हैं और यह अपने ऊपर आने वाले जो न्याय को है और क्रोध है उससे बच नहीं सकता। मैं परमेश्वर का पुत्र होने के नाते सामने आया, मैंने इसको एक तरफ ढकेला और मैंने कहा मैं जाऊंगा, मैं तुम्हारा जो शाप है वह लूंगा, तुम्हारी जो सजा है वह मैं अपने ऊपर लूंगा और तुम्हारे बदले मैं लड़ूंगा। 1 John chapter 3 verse 10, Jesus came to destroy the works of the devil. Yes. पहले यूहन्ना Jesus came to destroy the works of the devil even today in your life. आज भी यूहन्ना में लिखा हुआ है कि परमेश्वर यीशु मसीह जो आए थे शैतान के कार्य को नष्ट नाबूद करने आए थे और आज भी आपके जीवन में वह ऐसा करने वाले हैं। Daniel, hallelujah, hallelujah. Give all the glory and praise to Jesus. He is worthy of our praises. The second man was Daniel. In Daniel chapter 6, he was a prayerful man. दूसरा व्यक्ति दानियल था। दानियल की पुस्तक उसके अध्याय 6 में जो वह बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। He was an obedient, honest and a prayerful man. वह प्रार्थना करने वाला, ईमानदार और आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था। When the law was passed against him, जब उसके खिलाफ नियम बनाया गया, with the connivance of those who were against him, उनके द्वारा जो उसके खिलाफ थे, he became helpless. वह निसहाय हो गया। He was thrown into the den of lions. वह शेरों के गुफा में उसको फेंक दिया गया। His feet and hands were bound. और उसके हाथ और पैर को बांध दिया गया था। He was helpless.
वह तो कोई भी सहायता नहीं कर सकता था अपनी, but God helps the helpless. लेकिन जो निसहाय और असहाय होते हैं परमेश्वर उनकी ही सहायता करते हैं। The mouth of the lions was shut by God Almighty. और पिता परमेश्वर, प्रधान पिता परमेश्वर के द्वारा जो शेरों का मुंह था वह बंद कर दिया गया। Daniel was brought out safely. और दानियल को सुरक्षा सहित बाहर निकाल दिया गया। Read carefully. Those who plotted evil against him were thrown inside with their families. तो ध्यान से पढ़िए, बाइबल में लिखा है कि जिन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र किया उनको उनके परिवार सहित उसी शेर की गुफा में डाल दिया गया। So there have been many people in the Bible, in the Old and the New Testament, बाइबल में कई सारे लोग हैं पुराने और नए नियम में who became weak physically, spiritually, externally, emotionally. जो शारीरिक, आत्मिक, बाहरी रूप से और अपने भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ चुके हैं। Elijah prayed and the fire came from heaven. एलीशा ने प्रार्थना करी और आसमान से, स्वर्ग से आग की वर्षा हुई। 450 worshippers of Baal were killed in one day. बेल के जो 450 आराधना करने वाले लोग थे वह उस आग से मर गए। Then the message was sent to him तो उसके पास एक संदेश भेजा गया by King Ahab's wife. राजा अहाब की जो पत्नी थी उसने संदेश भेजा, By tomorrow you will be killed. कल तक तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी, तुम भी मार दिए जाओगे। Elijah, the great man of God, fled. एलीशा जो परमेश्वर का एक बहुत महान दास था वह भी डर के मारे भाग खड़ा हुआ And he even forgot his servant, his helper. और वो अपने जो मदद करने वाले नौकर चाकर थे उनको भी छोड़ दिया उसने। And while hiding, he gets into depression. और वह छुपते छुपाते अवसाद में चला गया, दुख में चला गया। And see what he's praying. और अब देखिए कि वो प्रार्थना क्या कर रहा है, Lord, let me die. परमेश्वर मुझे मरने दो। Have you ever said a prayer like that? You are good people. Hallelujah. I have. I have said a prayer like this. I have said. In 95, when I was cured from depression and nervous problem, my symptoms did not leave me for 1 year. And so while walking, I used to feel weak and suddenly I used to sit down. And so I got fed up of my sickness and symptoms. So I used to say, Lord, heal me or kill me. मैंने ऐसा किया है 1995 में जब मेरा इलाज हुआ, लेकिन मेरी पूरी बीमारी मुझे छोड़कर नहीं गई। मैं चलता था, थक जाता था और मुझे दर्द हुआ करता था। मैं इतना ऊब चुका था उस बीमारी में रहते रहते या उसकी परेशानियों से कि मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर या तो मुझे ठीक कर या तो मुझे मृत्यु दे दे। Praise the Lord. The Lord healed me. I work with double strength. परमेश्वर को महिमा देता हूँ, उन्होंने मुझे चंगा किया और अब मैं अभी दुगनी ताकत से उनका कार्य I'm कर सकता 52 हूँ। years old. मैं 52 वर्ष का हूँ। By God's grace, I get up in the morning and I sleep at 12 and 1 o'clock. और परमेश्वर की कृपा से मैं हर दिन सुबह उठता हूँ चंगा रहकर और रात को आराम से 12-1 बजे। All glory to Jesus. परमेश्वर को सारी महिमा हो। He restores double for everything that you lose. आप जो भी अपने जीवन में खोते हैं परमेश्वर उसको सुनिश्चित करते हैं कि उसका दुगना भाग वह He आपको gives वापस you करते double हैं। for your trouble. आपकी हर परेशानी के लिए वह दुगनी चीजें आपको भरपाई करते हैं। If you have lost your reputation in the past, He will give you double on it. अगर आपकी कहीं इज्जत आपने भूतकाल में खोई है तो परमेश्वर दुगनी इज्जत आपको लौटाएगा। I am telling you the truth. मैं आपसे सच बोल रहा हूँ। Whatever you have lost, write it on a piece of paper, lay your hand, say, this is what you have promised, Lord, restore it. I stand in your promise, and it will be done for you. आपकी जिंदगी में आपने जो कुछ भी किया है एक कागज पर उसे लिख लीजिए, परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर आपने वचन में यह वादा किया है कि आप मेरी हर समस्या और हर परेशानी के लिए मुझे दुगना देंगे। मैं आपके वचन में खड़ा रहता हूँ, यह मेरे लिए आप मेरे जीवन में करिए। Now this is about our part, our weakness, our limitations, our shortcoming, our blemish, everything us with, connected with us. Now we come to the main part of the message. अब यह सब जो कमजोरियां थी वह हमसे जुड़ी थी, हमारी भावनात्मक शारीरिक कमजोरियां, गलतियां। अब हम इसके दूसरे भाग में जाएंगे। Now comes the dessert.
अभी मिठाई आ रही है। अभी एक अच्छा भाग आ रहा है, मिठाई। Are you ready? Hallelujah. Yeah. Praise the Lord. Psalm 139 verse 2 and 3 says, I read it in Hindi to save time. Psalm 139 verse 2 and 3. तू मेरा उठना बैठना जानता है Amen. और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। Some people say like this, Lord, I'm like a वो मैं तो नाली का कीड़ों, मैं तो पापी, मैं क्या दुआ करूं? God says, tell me something new. I know you are a sinner, that's why I came. Now I have made you my son. Come and pray like a son. कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर मैं तो नाली के कीड़े जैसा हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं प्रार्थना कैसे करूँ? परमेश्वर कहता है कुछ ऐसा बताओ जो मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ तुम पापी हो, इसीलिए तो मैं आया और मेरे पुत्र को भेजा। अब मैंने तुम्हें अपना बेटा और बेटी बनाया है, अब मेरे बेटे और बेटी जैसे तुम प्रार्थना करो। God knows our weaknesses. परमेश्वर हमारी कमजोरियों को जानता है, God knows our secrets. हमारी रहस्यों को भी जानता है, God knows our desires. हमारी इच्छाओं को वो जानता है, He knows our thoughts, हमारे वो सोच समझ को जानता our है, plans, हम जो योजना बनाते हैं वो our भी जानता है, strengths, हमारी ताकत जानता है, our weaknesses, हमारी कमजोरी जानता our है, dreams, हमारे सपने जानता है, our struggles, और हम कहाँ पे जूझ रहे हैं, our वो भी failures, जानता है, हम कहाँ असफल हो रहे हैं, वो भी our जानता है, fears. और हम कहाँ डर रहे हैं, वो our भी जानता है, anxieties. और हमें किस बात से घबराहट होती है, वो भी What जानता है। can we hide from God? हम उससे आखिर क्या छुपा लेंगे? Nothing. If God can choose a characterless woman, if God can choose a man who makes excuses after excuses like Moses and says, "Who am I? Even if I say go, they will not believe." Now you are connecting, you are getting the sense? And Gideon says, "I am the weakest, I am the smallest in the family." अगर परमेश्वर एक चरित्रहीन स्त्री को चुन सकता है, उस पुरुष को चुन सकता है मूसा, जो कि बहाने पे बहाना बनाया जा रहा है कि मैं हूँ कौन, मैं जाऊंगा, अगर बोलूंगा अभी तो वह नहीं सुनेंगे। गिडियन को वह चुन सकता है कि मैं तो सबसे छोटा और कमजोर हूँ। Isaiah says, "I am a man of unclean lips." यशायाह ने कहा है कि मैं एक अशुद्ध होंठों का व्यक्ति हूँ। If God can choose and use people like these, how much more He can use you and me? Hallelujah. अगर परमेश्वर ऐसे चरित्र के लोगों को चुन सकता है और महान बना सकता है, तो कितना ज्यादा वह आपको और मुझे इस्तेमाल कर सकता है। सब लोग हाथ उठाएं, ऐसे हाथ उठाएं। God can use each one of you, each one of us. परमेश्वर आप में से हर एक को और हम में से हर एक को इस्तेमाल कर सकता है। Lord, ऊपर ताली। First Corinthians chapter 1 verse 27 and 28. First Corinthians chapter 1 27 and 28. पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 27 तो उसकी 28 आयत में 5 तरह के लोगों का जिक्र है। The weak, the foolish, despised, lowly, and those counted as nothing. वहां पर 5 लोगों के बारे में बताया है। God has chosen the foolish to shame the wise. God has chosen the weak to shame the strong. God has chosen the despised and those who are lowly and those who are considered as nothing. I'll translate this word in Hindi. It says, परमेश्वर ने दुनिया के मूर्खों को चुन लिया है, कमजोरों को चुन लिया है, तुच्छों को चुन लिया है. You understand the word तुच्छ? Untouchable. तुच्छों को चुन लिया है, नीचों को चुन लिया है और उनको चुन लिया है जो कुछ समझे नहीं जाते। तुम्हारी औकात क्या है? तुम हो कौन? क्या समझते हो? घर के बाहर रहो, तुम मेरी बराबरी करोगे। People who have rejected you,
people who have dejected you. God uses people who are broken and humble. And it says God chose what is foolish. अगर आपको और मुझको किसी ने मूर्ख कहा है तो हम हालेलुया बोल सकते हैं. अगर किसी ने हमको तुच्छ कहा है, अगर हमको बोला है तुम ठोकर के लायक भी नहीं हो, घर से निकलो, तुम क्या कर लोगे जीवन में, कुछ नहीं कर पाओगे. There is place for us in Jesus' heart. Amen. Praise the Lord. अगर पाम संडे में गधे के बारे में सुनते हैं ना, गधा तो नम्रता का प्रतीक है, लेकिन गधा जानते किसको बोलते हैं? तुम गधे के गधे ही रहोगे. You will not be able to do anything. लेकिन मुझे पास्टर परमजीत की बात याद है, जब बहुत हीलिंग कई जगहों पर हुई, उन्होंने बोला मैं यीशु मसीह गधा हूं जिस पर यीशु मसीह सवार है. हालेलुया. परमजीत cannot heal your hands, but परमजीत is the one whom Jesus is sitting. तो उस गधे के लिए रेड कार्पेट वेलकम होता है, लोग कपड़े बिछाते हैं. कौन चलता है? कौन चलता है? यीशु मसीह चलते कार्पेट पे या गधा चलता कार्पेट पे? हालेलुया. थैंक यू पास्टर, थैंक यू फॉर दोस वर्ड्स ऑफ विजडम. काश लोग मुझे मूर्ख बोले, काश लोग मुझे गधा बोले, काश लोग मुझे कमजोर बोले, काश लोग मुझे तुच्छ बोले, क्योंकि मेरे ही जैसे लोगों के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया. Another 10 minutes, then we are done. Let us talk about Paul. चलिए पौलुस के बारे में बात करते हैं. He went to the Lord. Lord, take away this thorn from my flesh. It is very painful. वो परमेश्वर के पास गया और कहा कि परमेश्वर मेरे मांस में से यह कांटा निकाल दो, यह बहुत दर्द करता है. His thorn was not his sickness. उसका जो कांटा था, जो चुभता था, वह उसकी बीमारी नहीं थी. It was his affliction. वो उसका कष्ट था. I have read few books from good men and women of God. See, Paul wasn't sick. His thorn was his affliction. मैंने कई परमेश्वर के दासों और लोगों की किताबें पढ़ी हैं. उसमें कहा है कि पौलुस बीमार नहीं थे, वह कष्ट में थे. 2 Corinthians chapter 12 verse 10. दूसरा कोरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 10 आयत में पौलुस ऐसे बोलते हैं, So I am well pleased with my weaknesses, with my insults, with my distresses, with the persecutions, and with difficulties for the sake of Christ. मैं अपनी दुर्बलताओं में, क्लेशों में, कष्टों में, मुश्किलों में, दुखों में आनंदित रहता हूं मसीह के लिए. Because when I am weak, then I am strong. Hallelujah. I am this. When I am weak, then I am strong. And Joel chapter 3 verse 10. योएल नबी की पुस्तक 30 अध्याय 3 अध्याय 10वीं आयत. Let the weak say, I am strong. Hallelujah. Let us say together. We are strong in Jesus. We are strong in Jesus. हम यीशु मसीह में बलवंत हैं. हम यीशु मसीह में बलवंत हैं. आमीन. In verse 9 he says, मैंने परमेश्वर से कहा, I asked the Lord 3 times, remove this flesh, this thorn from the flesh, and he said, no, my grace is sufficient for you. My grace has everything for you. My grace is my divine enablement that will help you to do more than you think or ask of me. That is what grace is.
पौलुस कहते हैं कि मैंने 3 बार परमेश्वर से कहा कि मेरा यह कांटा निकाल, मेरा यह कांटा निकाल, मेरा यह कांटा निकाल, और परमेश्वर ने कहा नहीं, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तुम्हें वह ताकत देगा जिसमें तुम बहुत कुछ कर पाओगे, और यही अनुग्रह कहलाता है। My grace, it's too deep actually, cannot be explained in few minutes. My grace is sufficient for you, for my power makes you perfect in your weaknesses. Wow. मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा जो बल और ताकत है वह तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों में बलवंत बनाता है। When we are in situation, when the situation is too big, अगर परिस्थिति बहुत बड़ी है, when we are in the hospital, हम अगर अस्पताल में हैं, when we are in the court, हम किसी कचहरी में हैं, when we are in a debt, हम किसी कर्जे में दबे हुए हैं, or any force coming against us, या कोई भी ताकत जो हमारे विरुद्ध आ रही है, we get desperate in our hearts. हम बहुत अपने दिल में घबरा जाते हैं। Whatever kind of problem, किसी भी तरह की समस्या हो which is too big, जो बहुत बड़ी हो, we want to just get out of it. हम सब उससे सिर्फ कूद कर निकल जाना This is चाहते with हैं, all of us. और ये हम सबके साथ होता है। We are restless. हम ऐसे ही हैं, हमको वहाँ अंदर शांति नहीं मिलती, We want to get out of it. हम उससे निकल जाना चाहते हैं। But when we are weak, लेकिन जब हम कमजोर होते हैं, when the problem is too big, जब समस्या बहुत बड़ी है, when the sickness is too big, जब जो बीमारी है वह बहुत बड़ी है, when we are alone, जब हम अकेले हैं, when we have fallen, जब हम गिरे हुए हैं we have fears, और हमको डर लग रहा the है, negative things are controlling us. और जो भी नकारात्मक बातें हैं वह हम पर अपना आधिपत्य जमा रही There है, are demonic activities in the house, और घर में कुछ शैतानी चीजें चल रही हैं, uncontrollable situation. आप उन पर कोई भी लगाम नहीं लगा सकते। The power of God is resting on me. Hallelujah. The power of God is enveloping me. The power of God is surrounding me. Though you are weak, I am strong with you. Hallelujah. Amen. तो परमेश्वर का जो बल आपके ऊपर रखा हुआ है, आपको उसने अपनी बाहों में घेर रखा है, और आपके चारों तरफ उसका आवरण है, और आप ढके हुए हैं, और उसकी वजह से आप बलवंत हैं। The one version says, यीशु मसीह is worthy to be praised. तुम जितनी भी ताली बजाए उतना अच्छा। He is worthy. There is no time in heaven. In the spiritual, there is no time in distance. Where Jesus is seated, all the time, billions of angels with the elders are saying, Holy, holy, holy is the Lord Almighty, who was and is to come. So, if we clap even 100 times, it is not enough. It is good. आत्मिक क्षेत्र में कहीं भी समय और दूरी नहीं होती, तो जहाँ पर यीशु मसीह विराजमान है, बहुत सारे करोड़ों स्वर्गदूत उनके लिए आराधना कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। इसलिए अगर हम हजार और करोड़ों बार भी उसकी महिमा और तालियां बजाएं, वह भी उसके लिए बहुत कम होगा। So when I am weak, the power of God is surrounding me. तो जब मैं कमजोर हूँ, परमेश्वर की ताकत मुझे घेर कर रखे हुए Though I है। am not able to realize this, the angels of God are surrounding me. भले मैं इस चीज को पहचान नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी उसके स्वर्गदूत मुझे घेरे हुए हैं। In the wilderness, when Jesus was fasting for 40 days, और परमेश्वर जब यीशु 40 दिनों के लिए उपवास कर रहे थे, in the book of Mark it says, chapter 1, I think verse 8 or 5, it says, there were wild animals. मरकुस की पुस्तक में ये कहता है कि परमेश्वर जहाँ पर यीशु कर रहे थे उपवास, वहाँ पर उसके आजू बाजू जंगली जानवर थे, And there was also और वहाँ पर the head of the demonic world, Satan himself. और शैतान वहाँ पर खुद भी मौजूद था। But the Bible also says, लेकिन यही बाइबल हमें यह भी बताती है, angels used to minister and come and strengthen Jesus. कि जो भी स्वर्गदूत होते थे वह आते थे, यीशु से बातें करते थे, समझाते थे और उसका ध्यान रखते थे। When we become believers, जब हम विश्वासी बन जाते हैं, we walk, हम चलते हैं, and there will never be a time in your life और ऐसा कभी भी आपके जीवन में समय नहीं आएगा when we become children of God जब हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, that we will be totally into negative
जब हम पूरी तरह से नकारात्मक or we will be चीजें totally into positive. या फिर हम सकारात्मक हो There जाएंगे, will be negative, वहाँ पर There will नकारात्मकता be भी होगी positive. और सकारात्मकता भी होगी, life, जीवन होगा, death, मृत्यु होगी, sickness, बीमारी होगी healing. और वहाँ पर चंगाई भी Because होगी। now we are the battleground. लेकिन क्योंकि अब हम युद्ध का क्षेत्र बन गए हैं And the devil wants to have his way in us and through us. और शैतान जो है वो हम पर और हमारे अंदर कब्जा करना चाहता है, But Jesus wants to have his way in us and through us. और यीशु भी अपना रास्ता हमारे ऊपर और हमारे अंदर बनाना चाहता है। On 4th May 2015, we bought an Ertiga car in the evening. 4 मई 2015 में हमने एक अर्टिगा गाड़ी खरीदी। 4 hours later, 4 घंटे बाद my wife twisted her ankle मेरी बीवी का पैर मुड़ गया and her ankle broke. और उनकी जो एड़ी है वो टूट गई And 2 days later, she was operated. और 2 दिन बाद ही उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। Moses says, I put before you life and death, मूसा कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखता हूँ, blessing and curse. तो आशीष और श्राप दोनों हैं। So, when we walk with Jesus, जब हम यीशु के साथ चलते हैं there will be opposition, तो हमारे विरुद्ध भी चीजें होंगी, but there will also be favor. लेकिन वहां पर हमारे साथ भी रहेंगे। Romans 8:26 says, रोमियो की पुस्तक 8वां और 26वीं आयत में बोला गया है, Romeo 8:26, the Spirit, the Holy Spirit helps us in our Weakness. weaknesses. पवित्र आत्मा जो है वह हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करते हैं। And the Bible says in Isaiah 40:29, यशायाह की पुस्तक 40वां अध्याय 29वीं आयत में बाइबल ने कहा है, it doesn't say the Lord gives power to the strong. वो वहाँ यह नहीं लिखा है कि मजबूत और ताकतवर लोगों को परमेश्वर अपनी शक्ति दे देते हैं। He gives power to the faint. वो कमजोर और बेहोश होने वालों को अपनी ताकत देता है, And he who has no might, zero strength, और जिसके पास बिल्कुल भी ताकत और सामर्थ्य नहीं है he increases strength. वह उनकी शक्ति बढ़ाता है। One very encouraging verse. एक बहुत ही आपको मैं उत्साहित करने के लिए वचन बताना Please चाहूंगी। remember this verse. इसको आप हमेशा याद रखिएगा, Very good verse. बहुत ही अच्छा वचन है। Ibraniयों 4:16, Hebrews 4:16. It says, we do not have a high priest who is unable to sympathize with us in our weaknesses. हमारे पास ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ हमदर्दी ना जता सके। जब हम पाप करके यीशु मसीह पास जाते हैं तो वो ये नहीं कहता अच्छा 40वीं बार पाप करके आए हो, get out of my kingdom. अगर हम बहुत पाप करते हैं और उसके बाद भी अगर हम यीशु मसीह के पास जा रहे हैं क्षमा मांगने, तो वह हमें कभी धुतकारता नहीं है। John chapter 8, यूहन्ना की पुस्तक 8वें अध्याय में लिखा है, the woman was caught red-handed in adultery. जो स्त्री थी वह व्यभिचार में रंगे हाथों पकड़ी गई थी। Jesus said, यीशु ने कहा, I do not condemn you. मैं तुम पर दोष नहीं लगाऊंगा, Go and sin no more. जाओ और फिर से पाप मत करना। John 3:16 we all know. यूहन्ना का 3:16 हम सबको पता है। हम सबको यूहन्ना 3:16 मालूम है ना? 17वीं आयत भी बहुत खूबसूरत है। जी हाँ। परमेश्वर का पुत्र इस वजह से नहीं आया कि दुनिया पर दोष लगाए, परंतु दुनिया उसके द्वारा उद्धार करे। For the Son of Man did not come to condemn the world, but that the world might be saved through him. I'm almost finishing. Pastor is okay? There have been sin in my life with which I've been struggling. मेरे जीवन में बहुत से ऐसे पाप रहे हैं जिनसे मैं जूझता रहा हूँ, And every time I would promise myself and God, और हर वक्त जब मैं ये वादा करता था अपने आप से और परमेश्वर से, for example, let us say anger, समझ लीजिए मुझे क्रोध है, and I say I will not do it.
और मैंने कहा कि अब मैं क्रोध नहीं करूंगा। I would do it again. मैं वही फिर से कर देता था, Gossip. किसी के बारे में बातें करना, There were things in my life. और बहुत सारी ऐसी बातें थी। And when I asked forgiveness so many times, और जब मैंने बहुत बार माफी मांगी परमेश्वर से, believe me, I am speaking in the presence of God. तो मेरा विश्वास कीजिए मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बात कर रहा हूँ। I used to feel ashamed to go and say sorry. तो मैं बहुत ही शर्मनाक महसूस करता था और परमेश्वर के सामने जाकर माफी मांगने में भी मुझे बहुत शर्म आती थी। Why? क्यों? I used to pray like this. Jesus, it's not your problem to forgive. It's not your problem to forgive. अच्छा, मैं ये ऐसा प्रार्थना करता था कि परमेश्वर ये आपकी समस्या नहीं है कि आपने मुझे माफ किया। But I'm just shameful creature. मैं एक And I don't know why I said. कि मैं ही एक ऐसा शर्मसार इंसान हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं इतने पाप करता क्यों हूँ। Then the Lord helped me to understand Paul. फिर परमेश्वर ने मुझे पौलुस को दिखाकर समझाकर मुझे समझाने की कोशिश Paul की। says, पौलुस कहता है, what the good I want to do, जो भी मैं अच्छा करना चाहता हूँ, I am unable to do. मैं वह कर ही नहीं पाता। And the things I don't want to और do, जो चीजें मैं नहीं करना चाहता the हूँ, bad things I want to stay away from, जो बुरी चीजों से मैं दूर रहना चाहता हूँ, those very things I do. वही सारी चीजें मैं करता Then he रहता हूँ। says, Then वह कहता है, it is not me who does it. मैं नहीं हूँ जो वह चीजें कर रहा It हूँ, is the sin in me that makes me do it. वो मेरे अंदर का पाप है जो मुझसे वह सब करवाता है। The DNA of human being is sinful. पर मनुष्य की जो संरचना है वह है ही पापी और पाप से भरी हुई। We always need Jesus. हमको हमेशा यीशु की जरूरत होती We है will always be needing Jesus. और हमको हमेशा उसकी जरूरत रहेगी। So we do not have a high priest who's not able to sympathize with us. तो हमारा ऐसा कोई महायाजक नहीं है जो हमसे सहानुभूति नहीं रख सकता। Psalm 103, I think verse 12 or 13, it says, He does not deal with us according to our sins. वचन संहिता 103 में लिखा है कि वह हम जैसा पाप करते हैं उसके अनुसार हमसे घृणा नहीं करता या हमारा न्याय नहीं करता। If God were to show every negative things of 52 years in my life, which He has washed by His blood, if He would show it on the screen, I will never come to Bombay. अगर मैं 52 वर्ष का हूँ, परमेश्वर अगर मेरी हर पाप को यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाने लगे इस 52 वर्षों में जो मैंने किया है, जो वो उसने अपने लहू से धो दिया, तो मैं कभी दोबारा मुंबई नहीं आऊंगा। This is with everyone. और ये हम सब के साथ है। But His blood cleanses us. लेकिन उसका जो लहू है वह धो देता है आपको। And He says, I will remember your sins no more. और वह कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को अब याद नहीं रखूंगा। So when we, yes, clap. When we go to Jesus with all our brokenness and filth and sin and dirt and tears, तो जब हम अपने सारे टूटेपन से गिरकर पाप कर अपराध और गलतियों के साथ यीशु के सामने जाते हैं, He hugs us. वह हमें गले लगाता है। He enfolds us. हमको अपने बाहों में ले लेता है। My son, I understand. मेरे पुत्र, मैं समझ सकता हूँ I have been through that age. और मैं उस दर्द से गुजर चुका हूँ। Jesus also understands the problem of youth. परमेश्वर जो युवा है उनकी समस्याओं को भी समझता है। A man, good-looking, handsome man of 30 years performing miracles. Can we imagine the amount of fans he had and the number of crushes he had? एक 30 वर्ष का युवा जो इतने चिन्ह चमत्कार करता है, क्या हम सोच भी सकते हैं कि कितने लोग उसकी वाहवाही करते होंगे और कितने लोग उसे पसंद करते होंगे। He says, yes, my son, you are welcome with all your dirt in my presence. वह कहता है, हे मेरे पुत्र, तेरा स्वागत है तेरी हर गंदगी और कीचड़ के साथ मेरी उपस्थिति में। Come to me, all who are burdened and heavy laden, and I will give you rest. Matthew 11:28.
मत्ती की पुस्तक 11:28 में लिखा है कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Before I end the message, मैं अपना आज का संदेश खत्म करूं उससे पहले the purpose of this message is not to let you stay in your weakness. इस संदेश का यह आशय नहीं था कि आप जहां भी कमजोरी या गलती में हैं वहां पड़े रहें। God wants to pull you out of your weakness. परमेश्वर आपकी कमजोरी से आपको निकालना चाहता है। It may not happen one day. वो हो सकता है एक दिन में ना हो। For that, two things are required. उसके लिए दो चीजों की आवश्यकता होगी। Lord, I am unable to do it, but I am willing. परमेश्वर मैं कर नहीं सकता लेकिन मैं चाहता हूँ। I am not able to do it myself, but I am willing. मैं अपने सामर्थ्य से नहीं कर पाऊंगा लेकिन मेरी इच्छा है कि ऐसा हो। It could be anything. वह कुछ भी हो सकता है। It could be a relationship. वह एक रिश्ता हो सकता है। I cannot come out of this relationship, मैं इस रिश्ते से बाहर नहीं आ सकता but I am willing. पर मैं चाह रहा हूँ। You get into the boxing ring. You get into the boxing ring. आप जाइए बॉक्सिंग रिंग में और मेरे लिए लड़िए। You fight my battle. आप मेरा युद्ध लड़िए। And the second thing is, और दूसरी बात यह है it will not take less than the supernatural power of God to bring you out of the rut or the dirt in which you and I get stuck into. परमेश्वर के अनुग्रह से कम कुछ भी नहीं लगेगा आपको उस कीचड़ धूल और गंदगी से निकालने के लिए जहां हम पड़े हुए हैं और पड़े रहते हैं। It will take the supernatural hand of God to bring you out of the evil power or the bondages we are stuck into. परमेश्वर की अलौकिक ताकत और हाथ की आवश्यकता होगी आपको उस चीज से निकालने के लिए या उस शक्ति जहां आप फंसे हुए हैं जहां पर बुरी चीजें आपके ऊपर हावी हैं। Psalm 30 verse 1. भजन संहिता 30 उसका पहला वचन। In Hindi it says like this. हिंदी में यह लिखा है, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। हालेलुया। परमेश्वर तूने मुझे खींच कर। We cannot come out of the problems or limitations ourselves. हम अपनी कमजोरियों और गलतियों और मुसीबतों से खुद ब खुद बाहर नहीं निकल सकते। Now the conclusion. अब मैं आशय जो उसका सार है उस पर आता हूँ। Deuteronomy 23:5. व्यवस्था विवरण उसका 23वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। I'm repeating it. Deuteronomy 23:5. व्यवस्था विवरण 23:5. God can change your curse into a blessing. परमेश्वर आपके हर शाप को आपकी आशीष में बदल सकता है। Psalm 30 verse 11. भजन संहिता 30 उसकी 11वीं आयत। You have turned my mourning into dancing आपने मेरे हर दुख को एक नृत्य में बदल दिया है and taken away my sackcloth और मेरी जो दुख का कपड़ा है उसको मुझसे दूर कर दिया है and turned it into joy. और उसको खुशी में बदल दिया है। If God can change your curse into a blessing, if God can change your mourning into dancing, then God can change your weakness into strength. अगर परमेश्वर आपके शाप को आशीष में बदल सकता है, आपके दुख और विलाप को नृत्य में बदल सकता है, तो वह आपकी कमजोरी को आपकी ताकत में भी बदल सकता है। God can change your shame into honor. परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को आपके लिए आपकी महानता में बदल सकता है, आदर और सम्मान में बदल सकता है। God can change your darkness into light. परमेश्वर आपके अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। God can change your wickedness into righteousness. परमेश्वर जो आपके अंदर बुरी चीजें हैं वो उसको वह एक धर्मी में बदल सकता है, धार्मिकता में बदल सकता है। God can change your lack into abundance. आपकी जो भी आपको कमी होती है अगर जीवन में तो उसको वो बहुतायत में बदल सकता है। God can change your little into much. आपकी छोटी सी चीज को परमेश्वर बहुत में बदल सकता है। God can change sickness into health.
परमेश्वर आपकी बीमारी को स्वास्थ्य में बदल सकता है। God can change death into life. परमेश्वर मृत्यु को जीवन में बदल सकता है। God can change sorrow into joy. परमेश्वर दुख को खुशी में बदल सकता है। God can change impossibilities into possibility. परमेश्वर असंभव को संभव में बदल सकता है। God can change your defeat into victory. परमेश्वर आपकी हार को आपकी जीत में बदल सकता है। In other words, दूसरे शब्दों में God can totally change your life. परमेश्वर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। Because he came for the weak. क्योंकि वह कमजोरों के लिए आया। He came for the broken. वह टूटे लोगों के लिए आया। He came for the fallen. जो गिरे हुए थे उनके लिए He आया। came for the imperfect. जो उत्तम नहीं है, जो बहुत कमजोरियों वाले हैं, उनके लिए आया। He came for sinners. वो पापियों के लिए आया। He came for wicked people. वो बुरे लोगों के, दुष्ट लोगों के लिए He आया। came for the sick. वो बीमार लोगों के लिए आया। And he came for the entire और world. वो पूरे संसार के लिए आया। So that whosoever would believe in him, कि जो भी उसमें विश्वास करे, could be anybody, वह कोई भी हो सकता है। Christians, क्रिश्चियन हो सकता Buddhist, है या बुद्धिस्ट हो सकता है, Hindus, हिंदू, Muslims, मुस्लिम, anybody, कोई भी, as long as he's a human being, जब तक वह एक मानव है, he may not perish, वह कभी नष्ट नहीं होगा, but have eternal life. बट वह अनंत काल का जीवन पाएगा। So let us clap for the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Pastor Karanji. Thank you, Pastor Rohit. Thank you, all of you, for listening to this message. God bless you. You know, sometimes it is so nice to receive. Wherever I go, I am called to speak. Even if it's a birthday, if it's a very small, medium, big event, they'll hand me the mic, you know. But it's sometimes so nice to sit there in the audience and listen to a man of God and receive words which bless me. God bless you. Beautiful message. Very beautiful message. See how beautifully he brought it step by step, giving his own example. Because that is the truth. I heard somewhere a pastor is saying कि तुम यहाँ पे हमारे चर्च में नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हारे में पाप है। मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा ये कौन सी कहाँ से आया है यार? ये कलीसिया जो बना है पापियों के लिए बना है। ये राइचस के लिए नहीं बना है। यहाँ आके तो हम राइचस होते हैं। और वो बोल रहा है तुम्हारे अंदर मेरे को पाप दिख रहा है। मुझे पाप दिख रहा है। तुम्हारे अंदर से खुद काला पड़ा है। तुम्हारे अंदर मुझे पाप दिख रहा है। अरे पाप दिख रहा है, उसको वचन सिखा, पाप चला जाएगा भाई। तो सबसे पहले अपने निकाल। मेरी बॉटल ऑफ ऑयल आई बॉट, आई रेड। आपकी रंगत की भी है मेरी। चलिए यहाँ पे अगर आप चाहें यहाँ पे रखते कहीं ऑयल कहाँ रखा जाए? चलो आज थोड़ा डिफरेंट मैसेज है ऑयल का। अब लगा दीजिए कि यहाँ सारे तो नहीं आएंगे। भर देंगे। अपने हाथ में रखिए, अपने हाथ में रखिए। मेरा कौन सा है? ये है ना, ये मेरा है। ओके, अभी देखिए प्रभु आपको हर स्थिति में से निकाल सकता है। प्रभु की मोहब्बत जो है बेइंतहा है। प्रभु का प्यार बेइंतहा है। अरे वाह, तो अल्लाह आपको दीजिए, आपको तो नहीं मना करूंगा। अच्छा आप तैयारी से आए हैं? कोई टेबल नहीं है छोटी सी? कुछ मैं बॉटल्स ऑयल की वहां रख देता हूँ।
या ये हो गया उल्टा नहीं वो ना मुझे हाँ इस पे रखिए ऑयल सब विजय साहब सब अगर आप यहाँ सब पर रखिए मालूम नहीं पड़ेगा कौन सा किसका है अपने हाथ में रखिए या कुछ रख रहा हूं मैं कुछ याद रखिए क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको कैसे पता लगेगा कौन किसका ऑयल है लोग तो 5-5 लीटर के लाए एक शॉट लेते हैं some of the oil bottles you will not be able to recognize so अपने हाथ में रखिए कुछ बोतल मैं यहाँ रख रहा हूँ फोटो लेंगे आप ऑयल बॉटल्स का या बाद में आपको याद रहेगा कौन सी किसकी है अरे हाथ में लिए रहो यार फ्रेंची anointing of the Lord Frenzy for the anointing of the Lord ऑयल की अनॉइंटिंग है। मेरे को प्रभु यीशु ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। ये टेप भी हो रहा है, मैंने लिखा भी हुआ है। ये मेरी तेल की बोतल है, अंगद की और मन्नू की भी है, वहां पहचान लोगे? नहीं, मेरा तो अलग ही है। ये ऑयल में जो प्रभु अभिषेक डालेगा, ये ऑयल में जो प्रभु अभिषेक डालेगा, अपनी ऑयल की बोतल उठाइए, इसे ऊपर हाथ ऊपर भाई घुमा दो एक बार। ये ऑयल में जो प्रभु अभिषेक डालेगा, जैसे आपने उठाए, और जहां पे भी आप हैं दुनिया में, आप भी अपनी ऑयल की बोतल अपने पास ले आइए, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने मुझे 20 पॉइंट दिए हैं इस तेल के लिए। और ऑयल जो है वो भार को तोड़ता है, ब्रेक्स द योक, इट ब्रेक्स द योक, द अनॉइंटिंग ब्रेक्स द योक। और हर एक की जिंदगी में, जैसे पास्टर साहब का मैसेज आया, कोई ना कोई योग तो है। जो बोलता नहीं है वो झूठा है।
कोई भी आदमी यहाँ पे है जो उन्होंने सच्ची बात कही, तो आपके 50 साल 40 साल में जो सिंध है अगर सामने आ जाए तो कोई भाषा भाग जाएंगे यहाँ से। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ये जो तेल है, इसके बारे में जो प्रभु ने मुझे बोला है वो ये है, इट इज अनयूजुअल, समथिंग टू डिक्रीज एंड समथिंग टू इंक्रीज। अभी तैयार है आप इसके लिए कि आप में कुछ घटेगा और कुछ बढ़ेगा? मुझे नहीं पता क्या है, प्रभु ने मुझे नहीं बताया। सेकेंड पॉइंट, द यूजलेस इन अस टू गो अवे। जो फालतू का है हमारे में से वो निकल जाएगा। और फालतू से कभी कभी बहुत मोहब्बत होती है, जैसे पास्टर जोएल का मैसेज आया आज, समझ रहे आप? तो इन चीजों के लिए तैयार हो, चीजें निकलेंगी, रूट आउट होंगी, थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आपके भले के लिए होगी, समझ रहे आप? अननेसेसरी क्लटर टू गो अवे। जो फालतू का क्लटर आपने रखा हुआ है, आपके अंदर गंदगी भर के, वो सब आपसे बाहर जाएगा। अनॉइंटिंग की वजह से, अभिषेक की वजह से, प्रभु की मोहब्बत की वजह से। बैड रिपोर्ट निकलेगी, वो भी खराब, ये भी खराब, ऐसा भी गंदा, ऐसा भी। बैड रिपोर्ट जाएगी, थिंग्स ऑफ गॉड रिपोर्ट विल फिल अस अप। ऐसा प्रभु ने बोला, बहुत अच्छे हो आप, आपका भला हो, कैंसर जा रहा है, डायबिटीज ठीक हो गई है, साइक्लोन नहीं आएगा, पानी नहीं आया, अच्छा होगा। गुड रिपोर्ट से प्रभु आपको भरेगा, अच्छी रिपोर्ट से आपको भरेगा। अभी तो सिर्फ चौथे में पहुंचा, पांचवा, स्टूपिडिटी निकलेगी, बेवकूफियां निकलेंगी। तैयार है? हमारी बेवकूफियां निकलेंगी, क्योंकि बहुत काम करना है, अभी पुख्ता काम करना है, मजबूत काम करना है, हमारी बेवकूफियां निकलेंगी। मुझे तो कभी चाहिए पूरी स्टूपिडिटी टू गो, विजडम टू कम। फालतू की चीजों में बकवास जो यहाँ पे भरा हुआ है, स्टूपिडिटी भरी भरे, वो निकल के वहां पे सद्बुद्धि आएगी। 6, प्रभु हमें जो तैयार है गिफ्ट ऑफ कंपैशन देगा, दैट टचेस हिज हार्ट। दूसरे का दर्द हमारे को लगेगा, दूसरे की खुशी हमारे को लगेगी। 7वां, हम लोग गरीबों की मदद करेंगे। पावर ऑफ लव, डेफिनेटली ओल्ड एज होम बनाएगा, चिल्ड्रंस का मुझे पता नहीं, पर ओल्ड एज होम बनाएगा। डिसीजंस टू बी मेड बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। जो हमारे पास डिसीजन आता है तो हमारा दिमाग इधर भागता है, इधर भागता है, फोन उठाते हैं, ये करते हैं, गूगल करते हैं, सब ठीक है, लेकिन जो सही डिसीजन आता है वो प्रभु के वचन से आता है। तो पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी डिसीजन लेने से पहले, वो प्रभु का वचन आएगा, और वो आपको ब्लेस करेगा, आपके डिसीजन को ब्लेस करेगा। मेरा थोड़ा सा माइंड बढ़ाओ। नेगेटिविटी जो लोगों में भरी हुई है, मेरा बच्चा खराब, मेरी बेटी खराब, मेरा चर्च खराब, लोग सीख नहीं रहे कुछ, भाई तू सीख ले यार, खुद सीखना जरूरी है ना। जैसा आदमी होता है वैसे से लोग देखते हैं। एक इंटेलिजेंट आदमी को इंटेलिजेंट लोग ढूंढ लेता है, क्योंकि उनको बेवकूफों का पता लग जाता है, लेकिन बुद्धू जो है वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये वही पिक्चर देखी, तो ये जंजा खुलिया, गुलाब मारी। So, negativity to godly positivity. There is a godly positivity. What is godly positivity? जाए उन्होंने बोला, when I am weak, I am strong. क्या बोला गुरु साहब ने? When I am weak, I am strong. I delight myself in my weaknesses. God gets a chance to work in me. प्रभु का हमें एक मौका मिलता है कि हमारे में काम करे, क्योंकि प्रभु तो परफेक्ट है, अगर हम भी परफेक्ट है तो क्या काम करेगा हमारे में? प्रभु को मौका मिलता है कि वो हमारे में काम कर सके और हमारे को परफेक्शन की तरफ ले जा सके। हैप्पीनेस टू बी आवर पोर्शन। रोड टू लोग निकल जाएंगे,
ये सब निकल जाएगा. Happiness, happy people make happy mohallas. Happy people make happy villages. Happy people make happy towns. Happy villages. I was reading, where people are happy, that town prospers. How beautiful. Happiness is a magic potion which comes from Jesus. It will be in this way. I've never got 20 points. Our feet will get ready for the gospel. Lot of work has to be done. हमारे जो पैर जो हैं गॉस्पेल के लिए तैयार रहेंगे. परमजीत सिंह के पैर जो हैं गॉस्पेल के लिए तैयार रहेंगे. हमारी वॉक जो है यीशु के और करीब होगी. हमारे को अपनी गलती और बड़ी दिखेगी. दूसरों की गलतियां नहीं, अपनी गलतियां दिखेंगी. ऐसे लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो अपनी गलती देखते हैं. पक चुका है उन लोगों से जिनको दूसरों की गलतियां दिखती. मेरा दिल करता है उनकी आंख में से खाट निकालूं, लेकिन वो कहते खाट है ही नहीं. Closer walk with Jesus. You will be more Holy Spirit led. That is a natural cause for you to walk closer to Jesus. Worship our Father in heaven. कभी कभी ना एक दिन पिता की पूजा कीजिए. Father, we love you. We adore you. We praise you, Lord. We thank you, Lord. We adore you, Lord. We worship you, Lord. We want to sit at your feet. आपके चरणों में बैठ के प्रभु हमारे को सीखना है कुछ. जगजोत का गया. हमें आपके चरणों में बैठ के कुछ सीखना है. प्रभु आज कुछ बात बताइए. प्रभु आज कुछ किस्सा सुनाइए. सुनेगा किस्सा. मेरे बेटे का नाम सुना है? हाँ सुना है. क्या है मेरे बेटे का नाम? यीशु. और मेरे दूसरे बेटे का नाम सुना तूने? कौन? परमजीत. उसकी वजह से तू मेरा बेटा बना. पढ़ता है ना तू, सिखाता है ना लोगों को कि एक बेबस औरत जिसका सारा पैसा चला गया था, बेबस बेहाल बदहाश, मेरा बेटा उस जगह आया तो उसने कहा, उसके दिल में एक ही बात आई कि मैं इसको छूऊंगी, मैं इसको हाथ नहीं मिलाना है, मेरे को उसका एड्रेस नहीं पूछना है, मुझे कुछ नहीं बोला, मेरे को इसको छू लेना है. बस सिर्फ छू लेना है. ठोकरे मारी, लाते मारी, पर उसके दिल में एक फतूर, एक पागलपन, एक जुनून, मुझे छू लेना है. पढ़ी है तूने स्टोरी? आज मेरे मुंह से सुन. मेरे बेटे की स्टोरी बोल रहा है. वो निकली. लोगों ने कहा तू तो श्रापित है, तू तो गंदी है, तू तो पापी है. लोगों को ये नहीं पता कि पापी के लिए तो आया हमारा यीशु. चलती गई और फिर क्या हुआ? उसने उसका चोगे को छू लिया. यीशु मसीह रुक गया. यीशु ने मसीह ने कहा, मुझे किसने छुआ? यार इसका मेरा माइक मेरी आवाज, मुझे किसने छुआ? अभी तो कोई और है ही नहीं, तो नीचे क्यों रखनी है उसको? मुझे किसने छुआ? तो उसको बोला, सर आपको तो सब छूना चाहते हैं, कौन हाथ नहीं लगाना चाहता? कहता है नहीं, जिसने मुझे छुआ, विश्वास से छुआ, मेरे में से सामर्थ निकला. और उस औरत का 12 साल का खून का बहना वहीं पे बंद हो गया. फिर पिता ने बोला, जा परमजीत, ये सच्ची कहानी दुनिया को सुना, और मैं सुनाता हूं, सुनाता रहूंगा. अभिषेक गाना गाती है, जो मेरा यही वाला जो जोएल साहब ने गाता है, इसकी एक वो है कि तेरी मैं कहानी हर वक्त सुनाता रहूं. क्या है वो? 3 लाइन गाओ, एक वही पंक्ति गाओ. That is one of my favoriteest lines in life.
यहोवा तेरी स्तुति हो। गाविशा यहोवा तेरे कामों का मैं बयान करूं। ये करते करते प्रभु के पास चला जाए, ये मेरी इच्छा है, दिल की इच्छा है। The last day I will be working for the Lord. Happiness to be our portion, feet ready for the gospel, closer walk with Jesus, Holy Spirit led, worship our Father in heaven, pray for each other. आपको बढ़ना है। अनॉइंटिंग आएगी इस फील्ड में, आप रात को 3 बजे उठेंगे और सुबह 7:30 बजे तक आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। तैयार हैं? गुड। पास्टर के लिए प्रार्थना करेंगे, क्रूसेड्स में जहां मैं जा रहा हूं वहां के लिए प्रार्थना करेंगे। ये अनॉइंटिंग आएगी ऑयल के अंदर। एक पीछे से फोटो लो, जो सब लोग कैमरा ले रहे हैं। आपने आप इधर ले लो, ऊपर करो कैमरा, इधर इतना दूर। ये देखिए, pray for each other. Houses and a church building will come. Houses and a church building will come. आप ये पॉइंट्स जो है ना लिख लीजिएगा मेरे से आप लेके, so that you know what to pray for. Understanding that Jesus in us is greater than what is in the world. This is one scripture. आपको समझ आएगी, आप बेतहाशा नहीं हो जाएंगे, आप घबरा नहीं जाएंगे। जब प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन आपके अंदर एक स्पिरिट जागेगी जो एक हायर लेवल पे आपको होली स्पिरिट ले जाएंगे, और वो यू विल लीप ओवर अ बटालियन, यू विल लीप ओवर अ वॉल। यू अंडरस्टैंड? एंड दैट विल टेल यू दिस प्रॉब्लम इज स्मॉलर देन द अनॉइंटिंग आई हैव। ये प्रॉब्लम जो है, जो अभिषेक मेरे दिल में है, उससे कहीं छोटी है। यीशु मसीह जो मेरे में है वो इससे कहीं बड़ा है, उस गंदे आदमी से कहीं बड़ा है, उस विकेट आत्मा से कहीं बड़ा है, उस दरिद्री से कहीं बड़ा है, उस चालाकी से कहीं बड़ा है, उस चतुरता से कहीं बड़ा है। मेरा यीशु महान है। अकेले हाथ में तो ताली बजाना मुश्किल है, मैं समझता हूं। मेरे साथ में बोलिए, बोलिए प्रभु यीशु जो मेरे में है। थोड़े लोग आगे आ जाए, इधर आप लोग नहीं, पीछे से। हाँ, प्रभु यीशु जो मेरे में है कहीं बड़ा है जो दुनिया में है। समझिए इस बात को, क्योंकि यही चीज आपको जीत देती है, यही चीज आपको विजय देती है, यही चीज आपको विक्ट्री देती है। गॉडली प्रॉस्पेरिटी आपके पास आएगी, अनगॉडली नहीं। गॉडली प्रॉस्पेरिटी के साथ क्या होता है? पाप नहीं जोड़ता है, गॉस्पेल के लिए यूज करी जाती है, चर्च बिल्डिंग के लिए यूज करी जाती है, पास्टर को भेजा जाता है, उसकी प्लेन टिकट बुक कराई जाती है, पास आराम से रखा जाता है। ये गॉडली प्रॉस्पेरिटी होती है, जिसके साथ कोई भी दुख नहीं जोड़ता है। 19th point, there are 21 points actually. Big blessing on the people in this church. लिख लीजिए, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आएगी इस चर्च के लोगों पे जो यहाँ पे टाइप करते हैं और ऑफर करते हैं। आपकी इनकम्स दुगना तिगना नहीं जाएंगी, 7 गुना, 10 गुना, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना जाएंगी। ये मैं कैमरे में बोल रहा हूं, जो यहाँ पे ऑनेस्टली टाइप करते हैं और ऑफर करते हैं। योर इनकम्स विल कैटअपल्ट टू अमेजिंग फिगर्स एंड सम पीपल्स ऑलरेडी हैव। जो आप सोच नहीं सकते वो इनहेरिटेंस आ जाएगी। कोई बंगले की चाबी दे देगा, कोई कहेगा पूरे साल का जो पास्टर की ट्रैवलिंग है मैं देखूंगा, कोई बोलेगा पूरे साल का किराया जो है मैं दे दूंगा, कोई बोलेगा ये ले इस हॉल की चाबी, यहां पे तू चर्च चला। ऐसा होगा, ऐसा होगा।
healing services we have. You remember that woman who came whose brain was leaking? कहाँ है? लक्ष्मी है क्या? वो ठीक है भी? ठीक है. बाहर गांव गए हैं. Brain was leaking. Brain had to be operated. Once she came to me, and the Lord Jesus touched her. Lakshmi brought her, and she is now gone for a holiday. Awesome healing services you have. Mind healings. You see retardation go away. You will see the dead rise because मेरा यीशु सफेद घोड़े पे आने वाला है और ट्रम्पेट बजने वाला है. It's the right time to be with you. God bless His church. God bless Power of Love, Paramjit Singh Association. God bless you. So Father God, in this oil, I pray these 21 things, Lord. You do things super.